Good evening, students. So, this is 28th of February. Actually, I have decided to make this video on ionic equilibrium one shot because students are suffering a lot regarding the questions of pH and pOH, etc. So, this video is only about ionic equilibrium, but it is a one shot video. I have tried to explain the questions here, tried to do some numericals, but you know that ionic equilibrium is a large topic and large chapter. This cannot be done in a so short time. So, but I have done all the important topics in here. I have discussed I have discussed this on the base of the numericals actually. So this is the numerical approach of ionic equilibrium. I hope this video will help you in your examination. This will help you in your school examination and as well as in your NEET or JEE examinations because I have discussed the questions which are very important numericals. Okay, so there are some questions of NCERT also. So please see the whole video and subscribe our channel. And if you like the video and if the video helped you, then you must share the knowledge with your friends. Okay, so thank you and watch the video carefully and must like it if you like it. Okay, thank you. Good evening, students. Today is 26th of February. Sorry, 28th of February actually. So we are doing this class. So this is on ionic equilibrium. It's one short video. So this is not a class. This is only a recording I'm making for you. Ionic equilibrium is a very important chapter actually, which is very important for the marks distribution also because in the exams and in the JEE and NEET, the percentage of marks that comes from the ionic equilibrium is very high. So we are going through this video to make you comfortable about ionic equilibrium. So let's start the video here. Uh, okay, so this is the ionic equilibrium. Okay, you should be careful about that. One, this is a one shot video. Okay, I will try to go and do some questions also here. Ionic equilibrium. The first type of question that comes from ionic equilibrium is regarding your pH and pOH. pH and pOH. We should be careful about that here. It is very important topic actually. pH and pOH, they are for the strong acids and bases, weak acid and bases also. So we have to do both of them actually. So the first we will do the strong acid and bases. For strong acid and bases, the pH equal to minus negative logarithm of your H plus. Or you can also say pH equal to minus logarithm of H3O plus. Both of them are correct actually because H plus and H3O plus are same because H2O plus H plus that will create H3O plus. The number of moles of H plus and the number of moles of H3O plus will be exactly same in the aqueous solution. That's why we can also write it here H plus or H3O plus. In case of POH, POH में क्या होगा? In case of POH, minus logarithm of OH minus. Okay, so these are the formula of pH and pOH. For strong acid and bases, there is a relationship between the pH and pOH. We can discover it from here. जैसे कि
आप लोग देखेंगे यहाँ पे द H2O जैसे होता है, इसमें क्या होता है, H+ होता है और OH- होता है, ठीक है ना। नाउ विल डू, इसको क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW। ओके, KW, दिस इज नोन एज द KW इज व्हाट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ऐसे तो इसका वैल्यू हम लोग KW को लिखते हैं 1 × 10⁻⁻14। ये जो वैल्यू है, ये आपका हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, और रूम टेम्परेचर का वैल्यू है। अगर इसको हम लोग 60 डिग्री सेंटीग्रेड में और 80 डिग्री सेंटीग्रेड में देखेंगे, तो इसका जो वैल्यू है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। 1 × 10⁻⁻ हो जाएगा अपना 13, और ये हो जाएगा KW 1 × 10⁻⁻12 हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये जो आपका वैल्यू है, ये वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर के साथ में आपका जो वाटर का जो डिसोसिएशन होगा वो ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए ज्यादा होने के मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर के ऊपर जो माइनस पावर है वो कम हो जाएगा। सो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू टेम्परेचर के साथ में ये आपका चेंज होता है। यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट। ओके। अच्छा, ऐसे तो हम लोग इसको रूम टेम्परेचर में लिखेंगे, बट इससे एक क्वेश्चन आया था IIT में, तो उसको भी हम लोग एक बार इसको डिस्कस करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। अभी इसमें लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ, लॉग ए बी है, लॉग ए बी क्या होगा, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी हो जाएगा, और यह पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ KW। अभी इसको बोथ साइड में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस लॉग H+, यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग OH-, यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग KW। अभी माइनस लॉग H+ का वैल्यू कितना है, pH, यहाँ पे देखिए आप लोग, दिस इज द pH। उसके बाद क्या हो जाएगा, POH। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस लॉग 1 × 10⁻⁻14। सो यहाँ पे 14 सामने आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 14, ठीक है। तो 14 हो गया वैल्यू, तो pH+POH इज इक्वल टू 14। अभी देखिए आप लोगों ने KW का वैल्यू जो लिया है वो ये लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर टेम्परेचर अभी 60 डिग्री होता, तो यहाँ पे जो वैल्यू होता वो pH+POH का वैल्यू होता है अभी 13 होता, ठीक है। अगर अगर इसको आप लोगों ने 80 डिग्री सेंटीग्रेड में लिया होता, तो -12 के आसपास होता, ठीक है। तो 12 के आसपास होता। तो इसको आपको याद रखना है, जो टेम्परेचर के ऊपर इस पीएच का जो पूरा स्केल है, वो यहाँ पे डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। ऐसे तो न्यूट्रल पॉइंट क्या क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 14 डिवाइडेड बाई 2, जैसे कि 7। तो न्यूट्रल पॉइंट कितना हो गया, 7। अगर टेम्परेचर 60 डिग्री होता तो तो न्यूट्रल पॉइंट क्या होता, अभी 13 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6.5 ही होता उसका। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा KW का वैल्यू से स्केल को निकालने का कैसे होगा, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट जो पॉइंट हुआ। अभी इसमें से हम लोग एक रिलेशन निकाल लिए है, pH+POH इज इक्वल टू 14, और pH का फॉर्मूला यहाँ से आपको मिल गया, और POH का फॉर्मूला यहाँ से आपको मिल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसका सामने जाएंगे, pH का एक दो न्यूमेरिकल यहाँ पे करेंगे, उसके बाद जाएंगे सामने। जो पहले हम लोग करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, वो एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। जैसे कि पीएच से यहाँ से 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे कैलकुलेट, 3 टाइप का क्वेश्चन ही मैं करूंगा यहाँ पे, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.001 मोलर HCl एंड
0.001 मोलर H2SO4। ठीक है। और 0.001 मोलर KOH। ये तीन क्वेश्चन मैं यहाँ पे करूंगा। उसके बाद हम लोग न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन का न्यूमेरिकल करेंगे, जो मिक्सचर होता है एनसीईआरटी में है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। सो पीएच निकालेंगे। सो पीएच निकालने के लिए पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, रोमन नंबर 1। पहला क्वेश्चन, पीएच ऑफ 0.001 मोलर HCl। HCl यहाँ पे देखेंगे हम लोग। नॉर्मलिटी चाहिए होगा हम लोग को, ठीक है। एन फैक्टर चाहिए होगा, यहाँ पे एन फैक्टर HCl का 1 ही है। HCl इज वन फैक्टर, एन फैक्टर ऑफ 1। तो क्या होगा इसमें, हम लोग क्या करेंगे, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, जो पूरा वैल्यू यहाँ पे है इसको पुट कर देंगे 0.001, ठीक है। अभी इसका कैलकुलेशन करेंगे, माइनस लॉग 10⁻⁻3। सो सामने आ जाएगा ये 3 log 10। तो उसका क्या होगा, वैल्यू 3 हो जाएगा। तो पीएच कितना निकलेगा, यहाँ से पीएच निकलेगा 3। ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन, हमारा एनसीईआरटी में भी है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अभी आते हैं हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में इसको यहाँ पे बताया है आप लोगों को, रोमन नंबर 2 में, H2SO4 का, ठीक है। तो H2SO4 को हम लोग देखेंगे। H2SO4 में एन फैक्टर कितना होता है, एन फैक्टर आता है 2। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या है, हम लोग जानते हैं, मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। तो यहाँ पे मोलारिटी कितना है, मोलारिटी है 0.001। इसके बाद एन फैक्टर है इसका 2। तो इसमें क्या हो जाएगा, 0.002 हो जाएगा। तो अभी इसका पीएच निकालेंगे। पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻³ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे। तो माइनस लॉग 10⁻³ और माइनस लॉग हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो 10⁻³ इसका क्या होगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका यहाँ पे। 3 - log 2। log 2 का वैल्यू आप लोग जानते हैं, तो ये जो होगा 2.7। log 2 का वैल्यू है 0.3010। सो ये हो जाए हमारा H2SO4 का, जो पीएच निकालने के लिए हम लोग को बोला है, ये है उसका पार्ट, ठीक है। अभी एक बेस का पीएच यहाँ पे निकालेंगे, केओएच का। तो केओएच जो है, उसका पीएच यहाँ पे नहीं निकलता है, उसका निकलता है आपका पीओएच। तो क्योंकि ये बेस है, बेस का क्या निकलेगा, पीओएच। पीओएच निकालेंगे कैसे, यही सेम प्रोसेस है। माइनस लॉग 10⁻³ तो ये क्या हो जाएगा, 3 log 10 इज इक्वल टू 3। सो पीओएच हो गया आपका 3। पीएच क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा 14 - 3, क्योंकि हम लोग जानते हैं पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11। तो इसमें पहले बेस का पीओएच निकालते हैं, उसके बाद पीएच निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीएच और पीओएच, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का, जो हम लोगों ने किया है। अभी क्या करेंगे, एक न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। एक न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सो ये क्वेश्चन मैंने अभी देखा है। ये क्वेश्चन है आपका, नीट में आया था, जेई में भी आया है। पूछे है आप लोगों को, कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 1/5 नॉर्मल 75 ml HCl प्लस 1/5 नॉर्मल 25 ml NaOH। ओके। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जब न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन आएगा आपके यहाँ पे, आप लोग ऐसे ही इसको करना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए। तो पहले इसका दो टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, एक एक शॉर्टकट हो सकता है, और दूसरा होता है आपका लॉन्ग कट। लॉन्ग कट में पहले देखेंगे, ठीक है, जो एक्चुअल प्रोसेस है। पहले हम लोग मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl का निकाल लेते हैं।
75 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। मिली इक्विवेलेंट क्या है? नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू नॉर्मलिटी। तो ये इसमें 15 हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा 15 नॉर्मल। ठीक है। अभी मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस का निकालेंगे। मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस का क्या निकालेंगे? बेस बोले तो यहाँ पे NaOH, तो इसका क्या निकालेंगे? मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। नॉर्मलिटी कितना है? 1/5। वॉल्यूम कितना है? 25। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, क्या हो जाएगा? 5। तो है 5 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा मिली इक्विवेलेंट। अच्छा, अभी क्या है? अभी देखेंगे कौन सा वाला ज्यादा है। आफ्टर द टाइट्रेशन कौन सा रहेगा? देखिए, ये है आपका 15 मिली इक्विवेलेंट, ये है आपका 5 मिली इक्विवेलेंट। सो रिमेनिंग रिमेनिंग एसिड कितना होगा न्यूट्रलाइजेशन के बाद? रिमेनिंग एसिड्स 15 - 5 इज इक्वल टू 10। ये है आपका 10 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड आपके यहाँ पे रिमेनिंग हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका मिली इक्विवेलेंट से, मिली इक्विवेलेंट क्या है? मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। रिमेनिंग क्या सॉल्यूशन है? एसिड। इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। बेस होने के समय इसमें पीओएच निकलेगा, ठीक है, उसके बाद पीएच निकलना पड़ेगा। मिली इक्विवेलेंट कैसे? मिली इक्विवेलेंट मतलब क्या है? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। अभी देखिए, इसका क्या है? मिली इक्विवेलेंट 10 है। नॉर्मलिटी कितना है हम लोग को नहीं पता। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम देखिए आप लोग, 75 ml। 75 ml प्लस आपका हो गया 25 ml, दैट इज इक्वल टू 100 ml हो गया आपका टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम कितना हो गया टोटल? 100 ml। अभी नॉर्मलिटी क्या है? 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.1। तो 0.1 बोले तो क्या है? 10⁻⁻1। ये किसका पीएच है? ये सॉरी, ये किसका नॉर्मलिटी है? रिमेनिंग एसिड का नॉर्मलिटी। पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग 10⁻⁻1, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो आपका पीएच निकलेगा यहाँ पे 1। वैसे इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन इसका शॉर्टकट जो आप लोग करेंगे, इसको आपको थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा, ठीक है। अभी पहले ही हम लोग इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं मन ही मन में। कितना हो गया इसका? 25, इसका हो गया आपका 5। तो जो जो आपका ज्यादा है, इसको सामने रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पुट कर रहा हूं मैं, जो ज्यादा है, इसका नॉर्मलिटी को N1, इसको V1, इसका नॉर्मलिटी को N2, इसका V2, यहाँ पे पुट कर देंगे मन ही मन में। अभी फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लेंगे। नॉर्मलिटी ऑफ द रिजल्टिंग एसिड सॉल्यूशन। ऐसे कैसे पता चला हम लोगों को? ये कैलकुलेशन जो करने के लिए बोला था, जो ज्यादा होगा वही होगा सॉल्यूशन का टाइप। यहाँ पे एसिड ज्यादा है, इसलिए एसिड का सॉल्यूशन होगा एसिडिक। अगर बेस का ज्यादा होता तो सॉल्यूशन होता बेसिक। ठीक है, बेस निकलेगा तो उसको सेम ही प्रोसेस है, पहले पीओएच निकालेंगे, उसके बाद पीएच निकालेंगे। तो नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1V1 - N2V2 डिवाइडेड बाई V1 + V2। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। अभी इसमें पुट कर देंगे, जो ज्यादा है उसको सामने रखना है। ये तो आप मॉड भी ले सकते हैं, मॉडुलस। ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे वैल्यू। तो ये हो जाएगा 75 × 1/5, दैट इज इक्वल्स टू 15, माइनस 25 × 1/5 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 100। तो क्या हो जाएगा? 0.1। सो नॉर्मलिटी एसिड का निकला है 0.1। तो पीएच क्या होगा? पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻1, दैट इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारा ये जो न्यूमेरिकल का शॉर्टकट। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग वीक एसिड का पीएच का क्वेश्चन देखेंगे। तो ये ऐसे आपका न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 48 के आसपास होगा। तो आप लोग वो क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, इस तरीके से कीजिए। जिसका भी आपका मिली इक्विवेलेंट ज्यादा होगा उसको सामने रख दीजिए, या तो मॉड्यूलस ले लीजिए। और याद रखना है आपको, जो ज्यादा होगा एसिड सॉल्यूशन का जो नेचर होगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे वो पहले देख लेंगे पहले, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे, जो उसके बाद वाला पार्ट है,
जो आपका वीक एसिड और वीक बेसिस के लिए है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आते रहते हैं। सादा क्वेश्चन स्कूल के आपका जो एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही आएंगे। तो वीक एसिड में क्या होता है? वीक एसिड, जैसे कि हम लोग एच एक्स लिख लेते हैं। एच एक्स को आप लोग डिसोसिएट करेंगे तो ये क्या होगा? डिसोसिएशन के बाद एच प्लस होगा और एक्स माइनस होगा। ठीक है। तो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पे, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, जो वीक एसिड है डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, डज नॉट डिसोसिएट्स कंप्लीटली। तो इसके लिए हम लोगों को ये पे एक एक यहाँ पे लाना पड़ेगा सिंबल, जो है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो है आपका अल्फा। मान लेते हैं इनिशियली यहाँ पे 1 मोल था, यहाँ पे 0 मोल था, यहाँ पे 0 मोल था। क्योंकि हम लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम से कि एट द टाइम टी इज इक्वल टू 0, जो प्रोडक्ट होता है वो 0 मोल 0 मोल ही होता है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे 1 - अल्फा लिख लेंगे। यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा। अभी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा थोड़े ही 1 होगा, ये तो 1 नहीं होगा। ये 10 मोल भी हो सकता है, 0.01 भी हो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेरिएबल के लिए मान लीजिए सी मोल है, सी, यहाँ पे सी अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे सी अल्फा हो जाएगा। ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग? केसी लिखेंगे। केसी इज इक्वल्स टू क्या है? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है एच प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स माइनस। ये वन शॉट वीडियो है, मैं यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको चैप्टर कंप्लीट कर लिया है ना। तो इसलिए मैं वन शॉट वीडियो दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये है आपका वैल्यू। तो केसी का, जो केसी की जगह पे हम लोग क्या करेंगे? इसमें के ए लिख लेंगे, क्योंकि के ए क्यू है, ये वीक एसिड के लिए ए लिख लेंगे हम लोग। ठीक है। अभी क्या करेंगे? पूरा वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी अल्फा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी अल्फा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी इंटू 1 - अल्फा। ये ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है। सी मल्टीप्लाई ए सी कैंसिल हो जाएगा, और अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। दैट्स वाई जो नीचे का पार्ट है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे। लेकिन ऊपर में हम लोग की कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया आपका के ए। इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको आप लोग अल्फा को इस साइड में ले जाएंगे, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए डिवाइडेड बाई सी, और इसका रूट ओवर निकालेंगे। अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर के बाई सी। ये इसको आपको याद रखना ही है। ठीक है। और वीक एसिड के समय जो पीएच का वैल्यू है, पीएच इज इक्वल टू क्या है? माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। अभी देखेंगे यहाँ पे जो एच प्लस का वैल्यू है वो क्या है? वो है सी अल्फा। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे माइनस लॉग ऑफ वैल्यू सी अल्फा। ठीक है। तो पीएच का वैल्यू क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा। ये है क्या है? वीक एसिड के बारे में। वीक बेस के बारे में क्या होगा? पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा। वहां पे अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा? रूट ओवर के बी डिवाइडेड बाई सी। ये क्या है? ये है आपका वीक बेस के समय, और वो हो गया आपका वीक एसिड के समय। वीक एसिड के समय तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा, जैसे वीक एसिड होता है। मैं दो यहाँ पे एग्जांपल, 3 क्वेश्चन का न्यूमेरिकल का एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, उसके बाद आप लोग देखेंगे इसको। तो जैसे है, अभी देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, के बी को याद रखना है, के को याद रखना है, और इसको भी याद रखना है। के और के बी का जो वैल्यू है वो सिर्फ आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और किसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है। तो इसका हम लोग न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं, जो आपको अच्छा से याद हो जाए इसको। 3 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे भी है। तो पहला पहला वाला जो क्वेश्चन है वो है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.001 मोलर, मोलर कैपिटल में होगा, एसिटिक एसिड having a Ka of 10 to the power -5।
तो ये है हमारा क्वेश्चन जो हम लोग को करने के लिए बोला गया है। तो इसका करेंगे कैसे, देखते हैं। ओके, तो पीएच निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा, वीक एसिड है एसिटिक एसिड, माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा। तो सी तो हम लोग को पता है, मोलारिटी जो है, सी इज द मोलारिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी अल्फा निकालेंगे। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ के ए डिवाइडेड बाई सी है। तो रूट ओवर डाल देंगे यहाँ पे, के ए का वैल्यू क्या है 10⁻⁻5। और यहाँ पे सी का वैल्यू क्या होगा, ये होगा आपका सी का वैल्यू क्या होगा, मोलारिटी 10⁻⁻3। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे 10⁻⁻2 रूट ओवर। तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻2 रूट ओवर माने 10⁻⁻2 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻1, 0.1 हो जाएगा इसका अल्फा। क्या हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 0.1। तो अभी इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा। तो यहाँ पे माइनस के माइनस लॉग हो जाएगा, सी के जगह में क्या हो जाएगा 0.001, और अल्फा के जगह में 0.1। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं, माइनस लॉग 10⁻⁻3 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻1। तो ये हो गया 10⁻⁻4 माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻4। तो इसका पीएच कितना निकलेगा, 4। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द न्यूमेरिकल्स ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। वीक बेस का एक फॉर्मूला, वीक बेस का हम लोग एक कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, वीक बेस का कर लेते हैं क्वेश्चन। वीक बेस का कर लेते हैं, जैसे कि एनिलिनियम हो गया, एनिलिन मोलारिटी दिया गया है, मोलारिटी इज इक्वल टू 0.01। एंड इसका आपको बताया गया है कि ये आपका के बी जो है, ये है 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम लोगों को क्या बोलने के लिए बोला गया है, पीएच निकालने के लिए। तो पहले हम लोग देख लेंगे वीक वीक क्या है, वीक बेस है। वीक बेस का हम लोग को पीएच नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, पीओएच निकलेगा। ओके, पीओएच निकाल लेते हैं। पीओएच का फॉर्मूला पुट कर देंगे, पीओएच इज इक्वल टू क्या है, माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा। हम लोग को क्या पता है, सी पता है, अल्फा क्या पता है, अल्फा नहीं पता है। तो अल्फा निकालने के लिए बेस का फॉर्मूला में से क्या निकलेंगे हम लोग, के बी डिवाइडेड बाई सी। तो के बी का वैल्यू क्या है 10⁻⁻6, सी का वैल्यू क्या है 10⁻⁻2। इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या हो गया इसका, इसका हो गया आपका 10⁻⁻4। कैलकुलेशन करेंगे 10⁻⁻2। तो अल्फा का वैल्यू क्या निकला, अल्फा इज इक्वल्स टू 10⁻⁻2, बोले तो 0.01। अभी पुट कर देंगे वैल्यू, माइनस लॉग सी का वैल्यू क्या है 0.01, और अल्फा का वैल्यू क्या है 0.01। तो क्या, माइनस लॉग 10⁻, माइनस हो गया 4, तो हो जाएगा इसका POH4। तो पीएच कितना हो जाएगा, पीएच इज इक्वल्स टू 14-4, दैट इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 11। तो इसको आपको नोट कर लेना है, और जो मैंने यहाँ पे बताया है वैसे ही ऐसे ही आपको इसको करना है। ठीक है, तो हम लोग चले जाएंगे उसका नेक्स्ट पार्ट में। हम लोग यहाँ पे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग, जस्ट इसको वन शॉट करना चाहते थे। तो ये हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरे यहाँ पे, मैंने देखा है बहुत टाइम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको ये बोला गया है, आपको ये बोला गया है पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज 5, मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, सी इज इक्वल्स टू आपको बोल दिया है, सी इज इक्वल्स टू आपको बोल दिया है 0.01। आपका इसका के ए निकालने के लिए बोला है। ओके, तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, एसिड है तो पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीएच का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा। अब पिछले बार तो पीएच निकालने के लिए बोला था सी अल्फा, वो सब गिवन था।
अभी क्या करेंगे, पीएच का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जो है आपका 5। तो माइनस लॉग ऑफ हो जाएगा आपका सी इंटू अल्फा। तो आपका सी अल्फा का वैल्यू आपको यहाँ से निकालना है। तो सी अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस एन टी लॉग ऑफ हो जाएगा, एन टी लॉग ऑफ हो जाएगा 5। तो अभी क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। सी का वैल्यू तो हम लोगों को पता है, ठीक है। अल्फा इज, अच्छा इसको पहले निकाल लेते हैं। किसी भी पॉजिटिव होल नंबर का माइनस एंटाई लॉग क्या होता है, 10 टू द पावर उसका माइनस पार्ट, जो वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो सी अल्फा इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -5। सी का वैल्यू हम लोग को पता है, सी इज इक्वल टू 0.01। सो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -2। ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर -3। ओके, तो अल्फा का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। अभी हम लोग को निकालना क्या है, के का वैल्यू निकालना है। हम लोग को पता है के इज इक्वल्स टू अल्फा इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ के ए डिवाइडेड बाई सी। अभी अल्फा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 10 टू द पावर -3। रूट ओवर की जगह में रूट ओवर हो जाएगा, के की जगह में के, और सी की जगह में 10 टू द पावर -2। कैलकुलेशन करने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे बोथ साइड में आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। 10 टू द पावर -6 इज इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -2। अभी इसका के निकालने हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -8। So this is the way you can find out the K and alpha and C alpha etc. from this data। तो हम लोग इसके बाद चले जाएंगे यहाँ पे बफर में। बफर जो सॉल्यूशन होता है, इसको नोट कर लीजिएगा काइंडली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बफर के बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसको जस्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बफर, बफर is a type of solution in which if a small amount of acid or bases are added to it, does not change its pH। जैसे कि बफर आपका दो टाइप का हो सकता है। बफर आपका दो टाइप का हो सकता है, एक होता है आपका एसिडिक बफर, दूसरा हो सकता है आपका बेसिक बफर। जैसे कि एसिडिक बफर कैसा हो सकता है, वीक एसिड प्लस इसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है क्लास में। जैसे हम लोग यहाँ पे थोड़ा एक एक दो एग्जांपल यहाँ पे दे देते हैं। CH3COOH प्लस CH3COONA। एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है, और इसका जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। जैसे कि HNO2 है नाइट्रस एसिड, उसके बाद NaNO2 है सोडियम नाइट्राइट। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं, लेकिन हम लोग इसका डिस्कस करने के लिए नहीं आए, थ्योरी का पार्ट है, हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था। बेसिक बफर में यहाँ पे क्या होता है, वीक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है। जैसे कि आपका एमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। और एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम क्लोराइड, एनिलीन,
प्लस एनिलीनियम क्लोराइड। तो ये हो गया हम लोगों का बेसिक बफर का एग्जांपल। बफर का पीएच निकालना बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा टफ डिफिकल्ट कुछ नहीं आता। मैं फिर भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाता हूँ। बफर का जो एक दो क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। बफर का जो फॉर्मूला है पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। सॉल्ट के जगह पे हम लोग यहाँ पे सीबी कॉन्जुगेट बेस और यहाँ पे एसिड भी डायरेक्टली ही डाल सकते हैं। और पीओएच इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस। हम लोग यहाँ पे पूरा डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। जस्ट वन शॉट वीडियो है तो हम लोग जस्ट इसका इंपॉर्टेंट जो है इसको यही वही वही डिस्कस करेंगे। और बफर कैपेसिटी आपको कैसे निकालना है। बफर कैपेसिटी मैक्सिमम पीकेए प्लस माइनस वन। ये है आप लोगों का बफर कैपेसिटी का पार्ट, ठीक है, मैक्सिमम जो है। तो ये है हम लोगों का बफर का जो हमारा जो थ्योरी पार्ट है। और भी बहुत कुछ है यहाँ पे, बफर एक्शन और कुछ भी है, लेकिन वो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है। अभी इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, दो ही न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद नहीं दिखेंगे। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सीधा सोलुबिलिटी प्रोडक्ट और सोलुबिलिटी में, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे बफर का पीएच कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे एक फाइन क्वेश्चन है। इन ए बीकर 0.001 मोलर 1 लीटर acetic acid was present, and we added 0.01 molar sodium acetate in that solution. Calculate the pH of the solution finally and the pH change मोल है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन बाय व्हिच यू कैन फाइंड आउट द पीएच ऑफ ऑलमोस्ट एनी बफर। एक्चुअली इसको देखेंगे हम लोग, उसके बाद एक और न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसका क्या करते हैं, पहले एक इसको विजुअलाइज कर लेते हैं। एक बीकर है, ये बीकर है। इसमें पहले क्या था, पहले था 0.001 मोलर HCl था 1 लीटर, ठीक है। इसका पीएच निकालेंगे पहले। तो पीएच इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, डायरेक्टली इसका वैल्यू ही पुट कर देंगे इसको। जो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लीटर एसिटिक एसिड, तो इसका पीएच निकाल लेंगे यहाँ से। 10⁻⁻³ तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ओके। ये हो गया हमारा पीएच जो पहले था। अभी क्या हुआ, अभी इसमें हम लोगों ने क्या ऐड किया, इसमें हम लोगों ने ऐड किया तो मोलर 0.01 मोलर सोडियम एसिटेट। देखिए आप, एसिटिक एसिड है आपका वीक एसिड। इसका जो सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ये है CH3COON। तो ये हो गया आपका बफर। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, फाइनल सॉल्यूशन, ये है आपका बफर।
उसका पीएच कैसे निकालेंगे, उसका पीएच निकालेंगे कैसे? ओके, ये इसमें क्या है, ये इसको हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड मान के क्वेश्चन कर लिया। हम लोग को यहाँ पे के चाहिए होगा, के इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10⁻⁻5। ये कर लेते हैं, अभी इसका मजा आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे हम लोग ये इसको रब कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे सुविधा है। वीक एसिड का तो के चाहिए होगा ना, वही मैं सोच रहा हूँ। ओके, इसका इसको बाद में करेंगे। क्या है इसका, एसिटिक एसिड है, 1 लीटर है। ठीक है। ओके, अभी क्या करेंगे, पीएच इक्वल टू, यहाँ पे चले जाते हैं, pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। फाइनल सॉल्यूशन का पहले निकाल लेंगे, पहला वाला बाद में निकालेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ऊपर में। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये okay। तो पीके का वैल्यू क्या है, इसका नेगेटिव लॉगरिथम ले लेते हैं। पीके का वैल्यू 4.7 आ जाएगा, 74 प्लस लॉग का वैल्यू लॉग है। और सॉल्ट का क्या है, सॉल्ट का क्या है, सॉल्ट का देखिए यह है सॉल्ट 0.01। एसिड का क्या है 0.001। इसको क्या कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या होगा 10। तो लॉग 10 इज इक्वल टू 1, यह हो गया 5.74। ये है फाइनल सॉल्यूशन का पीएच। तो हम लोग का ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, फाइनल सॉल्यूशन का पीएच हो गया। पीएच चेंज के लिए हम लोग को इनिशियल सॉल्यूशन का यहाँ पे पीएच निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसका पीएच निकालेंगे क्या से, कैसे निकालेंगे, वीक एसिड है, वीक एसिड का पीएच कैसे निकलता है, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा। तो माइनस लॉग हो गया, इसका सी का वैल्यू क्या है, इसमें सी का वैल्यू है 10⁻⁻3, 10⁻⁻3। अल्फा का वैल्यू हम लोग को नहीं पता। अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू रूट ओवर के ए बाई उसका हो जाएगा सी। ओके, अभी इसका कैलकुलेशन करते हैं, अल्फा का वैल्यू निकालते हैं। अल्फा रूट ओवर में रूट ओवर हो जाएगा, के की जगह पे उसका 1.8 इंटू 10⁻⁻5। और सी का वैल्यू क्या है 0.001। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन के इजी के लिए इसको 18 लिख लेते हैं, 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻3 निकल जाएगा। तो 10⁻⁻3 यहाँ पे निकल गया। इसको हम लोगों ने निकल गया 10⁻⁻3। ओके, तो अभी क्या करेंगे, इसका इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। तो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, इसका कैलकुलेशन करें, कीजिएगा आप लोग, कैलकुलेशन करेंगे। तो करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू। तो पुट करने के बाद क्या होगा, इसका पीएच यहाँ से निकल जाएगा, और माइनस कर देंगे फाइनल से इनिशियल वाला। इसका कैलकुलेशन करने के लिए क्या चाहिए, ये थोड़ा डिफिकल्टी हो गया कैलकुलेशन थोड़ा सा। 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा रूट ओवर थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा, कैलकुलेशन कैलकुलेटर चाहिए होगा इसके लिए। ओके, तो क्या हो जाएगा इसमें, रूट ओवर ऑफ 1800 इसको 10⁻⁻3। थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा कैलकुलेटर में। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेशन इज अ सेकेंडरी थिंग। अल्फा इसको यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे, पीएच निकलेगा, फाइनल से इनिशियल माइनस कर देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया आपका दूसरा वाला क्वेश्चन। ओके, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे एक और बफर के क्वेश्चन में। जैसे एक बफर है, जो एक बफर है आपको बोला गया है, बफर आपको बोला गया है, एक बफर है जिसमें है 1 मोलर है आपका एसिटिक एसिड 1 लीटर में, और 1 मोलर है आपका सोडियम एसिटेट 1 लीटर में। ठीक है, तो इसमें क्या किया है उन लोगों ने इसमें क्या किया है, इसके साथ में 0. समझ लीजिए 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड कर दिया है। अभी इसका पीएच निकालने के लिए बोला है। और एसिटिक एसिड का पीके आप लोगों को दिया गया है, पीके ऑफ एसिटिक एसिड ये आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है 4.74। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भी देखना पड़ेगा। ये थोड़ा एंट्रांस के टाइप का है।
तो क्या करेंगे इसमें, देखिए, जब इसमें आप लोग बेस ऐड करेंगे तो थोड़ा कुछ तो रिएक्शन होगा इसमें। कौन सा किसके साथ में रिएक्शन होगा, देखते हैं। CH3COO Na, इसके साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोई रिएक्शन ही नहीं है, नो रिएक्शन। और एसिटिक एसिड एसिड के साथ में, एसिटिक एसिड के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, CH3COO Na, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा H2O। तो हम लोग क्या क्या देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज हम लोग नोटिस कर रहे हैं। यहाँ पे जितना मोल, याद रखना है, जितना मोल यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग डाल रहे हैं, उतना ही यहाँ से एसिटिक एसिड कंज्यूम हो रहा है और सोडियम एसिटेट यहाँ पे इतना बढ़ रहा है। यही बात इंपॉर्टेंट है इसी क्वेश्चन में। जितना मोल हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे ऐड करते हैं, उतना ही यहाँ से एसिड का जो क्वांटिटी है वही यहाँ से घट जाएगा, और CH3COO Na का यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कितना मोल डाले हैं, मोल डाले हैं, ग्राम डाले हैं, 4 ग्राम। 4 ग्राम बोले तो कितना मोल, 4/40। सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो 0.1 मोल। ओके। तो हम लोग का न्यू कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड का क्या है, क्या होगा, पहले कितना था, पहले था आपका 1, उसमें से कितना कम हो गया, 0.1। तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 0.9। और एसिटिक सोडियम एसिडेट का कितना हो जाएगा, सोडियम एसिडेट का हो जाएगा 1 + 0.1, ये हो जाएगा 1.1। अभी पीएच कैसे निकालेंगे, अभी पीएच इक्वल्स टू, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग करेंगे, pKa प्लस लॉग ऑफ उसका सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, pKa का वैल्यू क्या है, 4.74, प्लस लॉग का वैल्यू लॉग है, सॉल्ट क्या है, सॉल्ट है 1.1, और एसिड है 0.9। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये जो कैलकुलेशन है इसको करने के बाद आपका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर आप बेस ऐड करेंगे तो एसिड कम हो जाएगा, अगर आप एसिड ऐड करेंगे तो सॉल्ट कम हो जाएगा। यही क्वेश्चन आप लोगों को HCl के साथ में देते, 3.65 ग्राम HCl के साथ में देते, तो से उल्टा हो जाता, सोडियम एसिटेट का वैल्यू गिर जाता और एसिटिक एसिड का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो जाता। तो ये है हमारा बफर का क्वेश्चन, हम लोग इसके इससे ज्यादा नहीं करेंगे बफर में, हम लोग इसका पहले कर चुके हैं क्वेश्चन। हम लोग अभी देखेंगे सोलुबिलिटी एंड सोलुबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। जो है आपका सोलुबिलिटी है, इसका डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्ट दैट इज डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये है आपका सोलुबिलिटी का डेफिनेशन। ठीक है, सोलुबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, यह है आपका सोलुबिलिटी। तो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट को लोग ऐसे लिखते हैं, KSP और LSP। देखते हैं, देखते हैं। ये हमारा, मैं फिर से कह रहा हूँ, दिस इज आवर रिवीजन क्लास, क्लास में हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़े थे। ठीक है, अभी इसको हम लोग जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। जैसे कि MX3 एक सॉल्ट है, इसका जो है सोलुबिलिटी है 1 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है, तो मोल पर लीटर इसका यूनिट है। तो हम लोग को क्या बोला गया है, इसका KSP निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पे बोला गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, KSP निकालने के समय अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग देखे थे, यहाँ पे 1 है ना, तो इसका सोलुबिलिटी हम लोग इसको पूरा इतना बड़ा वैल्यू कैसे पुट करेंगे, इसको S लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या है इसमें, देखिए सफिक्स में क्या है, इसका 1 है तो इसका 1 यहाँ पे पुट कर देंगे। सोलुबिलिटी क्या है, S, पूरा वैल्यू बाद में लिखेंगे, S यहाँ पे पुट कर देंगे, और उसका जो सफिक्स में है उसको पावर के जस जगह पे इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 1 ⁻1, ये किसका हो गया, M का हो गया। X का भी चाहिए, X का यहाँ पे सफिक्स में देखिए क्या है, 3 है, तो 3।
सोलिबिलिटी क्या है, एस है, इसका एस यहाँ पे पुट कर देंगे, और टू द पावर इसे यहाँ पे हो जाएगा 3। तो अभी कैलकुलेशन करेंगे, 3 3 19, 27, एस टू द पावर 4। अभी एस का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 27 इंटू यहाँ पे एस का वैल्यू क्या है, 1 इंटू 10 टू द पावर -5। तो इसका हो जाएगा टू द पावर 4, ठीक है ना। तो अभी यह क्या है, 27 हो गया, और इंटू 10 टू द पावर -20 हो गया। सो ये हो गया हमारा सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसमें से हम लोग सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। जो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, डज नॉट चेंज विथ कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर एटसेट्रा, ओनली चेंजेस विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसमें यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दो न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, देखिए। सपोज आपका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट यहाँ पे दिया गया है, के एस पी दिया गया है 10 टू द पावर यहाँ पे सपोज दिया गया है -8 AgIO3। इसका बोला गया है आपको सोलिबिलिटी निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, AgIO3 का जो पहले डिसोसिएशन देखना पड़ेगा, कैसे डिसोसिएट होता है। ये क्या होगा, Ag+ होगा, और ये क्या हो जाएगा, IO3- हो जाएगा। तो इसका सामने कोविशेंट को देखना पड़ेगा, इसके सामने नीचे क्या है, 1, और IO3 पूरा है 1, ठीक है। तो इसका KSP का एक्सप्रेशन क्या होगा, हम लोग एस से लिखेंगे। तो 1 है, 1s⁻1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s⁻1। तो इसका KSP का वैल्यू क्या है, वैल्यू है 10 टू द पावर -8, इज इक्वल टू हो गया आपका S²। तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू √ऑफ 10 टू द पावर -8, दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -4। तो AgIO3 का एस का वैल्यू ऐसे निकलेगा, ठीक है। दिस इज हाउ द वैल्यू ऑफ सोलिबिलिटी मस्ट बी फाउंड। ओके, ओके। उसके बाद देखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे और कुछ आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये देखिए, K2 Cr2, सॉरी, सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। जैसे कि सिल्वर डाइक्रोमेट Ag2Cr2O7, इसका कैसे लिखेंगे। अगर इसका लिखना है तो आपको KSP का एक्सप्रेशन लिखना है, कैसे लिखेंगे, KSP इज इक्वल्स टू, देखेंगे इसको, ये Ag तो Ag+ है, और Cr2O7 पूरा एक क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2s⁻², 1s⁻1, ठीक है। जैसे कि आप लोग सिल्वर ऑक्सलेट कैसे लिखेंगे, Ag2C2O4, ठीक है ना। इसका कैसे लिखेंगे हम लोग, 2Ag+ प्लस हो जाएगा C2O4 2-। तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग, KSP इज इक्वल्स टू 2s⁻², 1s⁻1। ऐसे हम लोग इसका KSP लिख सकते हैं। अगर इसका आपको KSP दिया गया है तो आप S निकाल सकते हैं, S दिया गया है तो KSP निकाल सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा भी आता है, ग्राम सोलुबिलिटी, जैसे कि बताया गया है, द KSP ऑफ AgIO3, और AgI लिख लेते हैं, AgI इज 10 टू द पावर -4 -8, 10 टू द पावर -8। What is the gram solubility of AgI in 100 ml। 100 ml में बताया गया, हमारा जो सोलबिलिटी का जो डेफिनेशन है वो पर लीटर के लिए है। यहाँ पे पूछा गया है 100 ml के लिए, और सोलबिलिटी का है मोल पर लीटर, यहाँ पे है ग्राम पर लीटर। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका कैसे करेंगे, पहले तो इसका सोलबिलिटी निकाल लेते हैं। सोलबिलिटी कैसे निकालेंगे, AgI का सोलबिलिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन, KSP इज इक्वल्स टू 1 1 1s⁻1
1 s टू द पावर 1। तो ये हो गया आपका एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -8। तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 10 टू द पावर -8, दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है 10 टू द पावर -4, इसको, ये है सोलबिलिटी मोल पर लीटर में, इतना मोल है पर लीटर में, तो हम लोग लिखेंगे पर लीटर मोल तो 1000 ml में है 10 टू द पावर -4। तो 100 ml में कितना होगा, 100 ml में होगा 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये चला जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -5 मोल पर 100 ml। पर 100 ml में इतना मोल है, लेकिन मुझे पता है ये मोल में नहीं चाहिए उन लोगों को, ग्राम सोलबिलिटी चाहिए होगा, तो ग्राम में लेना पड़ेगा ना। तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिल्वर का कितना है 108, और आयोडीन का कितना है 127। तो 8 7 15 1 3 3, ओके, सॉरी 235। तो 235 है इसका। तो इसमें क्या करेंगे, ग्राम सोलबिलिटी इज इक्वल्स टू 235 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -5 ग्राम पर 100 ml में होगा। ये है आपका जेई का क्वेश्चन है। ये ये जेई का क्वेश्चन है। अच्छा, जैसे यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन। जैसे और दो टाइप का क्वेश्चन आता है, एक है आपका प्रेसिपिटेशन किसमें होगा, और दूसरा है आपका जो है, दूसरा आपका है जो सोलबिल जो कॉमन आयोन इफेक्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपका एक कंडीशन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, प्रेसिपिटेशन कब होगा, इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपको याद रखना है। इफ द के ए इज ग्रेटर देन के एस पी, जिसका मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट इज ग्रेटर देन सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज ग्रेटर देन सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, देन आपका यहाँ पे प्रिसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका के ए इज लेस देन के एस पी होगा ना, तो ये आपका कभी भी यहाँ पे प्रिसिपिटेशन नहीं होगा, नो प्रिसिपिटेशन। और याद रखिएगा सोलुबिलिटी प्रोडक्ट हमेशा वीक सॉल्ट के लिए ही निकलता है। सोलुबिलिटी इज फॉर द वीक सॉल्ट, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो गया, इनके लिए सोलुबिलिटी प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं है, सोलुबिलिटी का कोई मतलब नहीं है। द मोलारिटी इज द सोलुबिलिटी, ओके। लेकिन जो वीक सॉल्ट्स है, जो आपका यहाँ पे डिसोसिएट कम होता है, उसके लिए हम लोग इसमें यहाँ पे के और के एस पी का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द पीपीटी ऑकर्स, इन व्हिच ऑफ द सॉल्यूशन द पीपीटी ऑकर्स। तो ये आपका क्वेश्चन है, जैसे कि इस पे के ए दिया गया है, सॉरी के एस पी दिया गया है, के एस पी इज इक्वल्स टू बेरियम कार्बोनेट के लिए BaCO3 के लिए दिया गया है के एस पी 10 टू द पावर -10। ओके, अभी यहाँ पे नीचे थोड़ा, यहाँ पे ऑप्शन है, एक नंबर ऑप्शन में है, बेरियम में है Ba2+ इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3, और CO3 2- इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3। नंबर दो जो है, यहाँ पे Ba2+ इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6, और CO3 2- इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 है, ठीक है। नंबर थ्री, यहाँ पे है Ba2+ इज इक्वल्स टू मोलर, सब मोलर है, सब मोलर 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई CO3 2- यहाँ पे 10 टू द पावर -2 मोलर है। अभी देखिए यहाँ पे और एक ऑप्शन है 4 नंबर में, Ba2+ इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2, एंड CO3 2- इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3। अभी देखेंगे इसका, ये तो के कैलकुलेशन है, के कितना होगा इसका, देखेंगे इसको, ठीक है।
तो पहले वाला देखेंगे, के एक, इसका कैलकुलेशन करते हैं। रफ कैलकुलेशन है 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3, कितना हो गया? 10⁻⁹ तो के ए यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन के एस पी है, तो यहाँ पे प्रिसिपिटेशन हो जाएगा। एक नंबर में प्रिसिपिटेशन हो जाएगा, तो पहला वाला आंसर जरूर है। बाकी के चेक कर लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा? के, इसका क्या हो जाएगा दूसरे वाला का? 10⁻⁻12, छोटा है, नहीं होगा। इसमें देखिए 10⁻², 10⁻², इसका के कितना हो जाएगा बेरियम कार्बोनेट का? 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ बोले तो ज्यादा है, यहाँ पे जरूर प्रिसिपिटेशन होगा। यहाँ पे देखिए 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3, 10⁻⁻6, तो यहाँ पे भी प्रिसिपिटेशन होगा। तो जिसमें आपका के का वैल्यू के एस पी से ज्यादा होगा, इसमें आपका प्रेसिपिटेशन जरूर होगा। ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन तो यहाँ से आते हैं, लेकिन हमारे पास ये वन शॉट वीडियो है, पूरा डिस्कस नहीं कर सकते। 10-12 कैलकुलेट कर, 10-12-15 यहाँ पे एग्जाम्पल आपको नहीं दे सकते हम लोग। सो ये आपको यहाँ देखना पड़ेगा, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे जो ट्राई कर रहा हूँ, वो पूरा चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए कर रहा हूँ। तो उसके बाद का जो प्रॉब्लम है वो है हमारा सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, सॉरी, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, ये जो कॉमन आयन इफेक्ट है वो एक्चुअली कुछ नहीं है, लीच प्रिंसिपल का ही पार्ट है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक बीकर है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग का क्या है, एसिटिक एसिड है CH3COOH। तो ये यहाँ पे निकल के CH3C माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका H प्लस। तो ये है आपका एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं थोड़ा सा, ये इक्विलिब्रियम में है देखिए, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, CH3C यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब CH3C माइनस और Na प्लस हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो देखिए, जो इक्विलिब्रियम में था, इसका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड डायनामिक इक्विलिब्रियम में था, जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ गया है, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो इक्विलिब्रियम है, दिस विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। समझ गए आप लोग? यही कॉमन आयन इफेक्ट है। कॉमन आयन इफेक्ट के द्वारा क्या होता है, अगर आप कुछ ऐड करते हैं यहाँ पे, तो आपका क्या होगा, आपका जो सोलुबिलिटी है वो चेंज हो जाएगा। सोलुबिलिटी प्रोडक्ट नहीं चेंज होगा, सोलुबिलिटी चेंज हो जाएगा। थोड़ा देर के लिए रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, पानी पी। तो ऐसे हमारा जो ये है कॉमन आयन इफेक्ट है, वो कुछ नहीं, जस्ट लीचे प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करके दे रहा हूँ कॉमन आयन इफेक्ट का। यही मैं यहाँ पे कर सकता हूँ आपके लिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, वन शॉट वीडियो है केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम का। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करके दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे तो आपका सब क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि यही है इंपॉर्टेंट। देखते हैं, एक ही क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेट द solubility of calcium fluoride in 10⁻⁻4 normal hydrogen fluoride। KSP इज गिवन, यही क्वेश्चन कर लेंगे और कुछ नहीं चाहिए होगा। KSP इज गिवन 10⁻⁻16। हो गया, बस यही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं कर रहा हूं वैसे ही करना पड़ेगा। लेट द solubility of calcium fluoride in 10⁻⁻4 normal hydrogen fluoride is एस प्राइम। सोलिबिलिटी को हम लोग क्या कर लेते हैं, एस प्राइम निकल लेते हैं। तो क्या होगा, कैल्शियम फ्लोराइड से क्या निकलेगा, CF F2 से क्या निकलेगा, के Ca2 प्लस प्लस निकलेगा 2F माइनस। तो इसका सोलिबिलिटी क्या है, एस प्राइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस प्राइम, और यहाँ पे क्या निकलेगा, 2S प्राइम। ठीक है। अभी
जो कॉमन आयन है वो कौन सा है, एच एफ एफ है। सो न्यू एफ माइनस का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा, डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से 2s प्राइम था एफ, अभी हम लोगों ने कुछ ऐड किया है 10⁻⁻⁴, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s प्राइम प्लस 10⁻⁻⁴। ठीक है, 10⁻⁻⁴ हो जाएगा न्यू एफ माइनस का। कैल्शियम का चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा। तो अभी इसको हम लोग सोलबिलिटी प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं के एस पी का, कैल्शियम फ्लोराइड का क्या निकलेगा, कैल्शियम फ्लोराइड का निकलेगा 1s⁻⁴ कैल्शियम का, एंड 2s⁻², और 2s का पूरा वैल्यू में हम लोगों ने यहाँ पे निकल लिया, और कैल्शियम का ये हो गया वैल्यू। तो क्या करेंगे, s'⁻⁴ ट्वाइस एस प्राइम प्लस 10⁻⁻⁴ स्क्वायर। ठीक है, हो गया। यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो इसका तो एस प्राइम ही रहने दो, और इसका थर्ड ब्रैकेट ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये 2 2 4, 4s प्राइम स्क्वायर, ओके, प्लस 2 × 2s प्राइम मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴, ओके, 2ab, प्लस हो गया आपका बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बोले तो 10⁻⁻⁸। अभी इसका एस प्राइम से कैलकुलेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4s प्राइम क्यूब हो जाएगा, क्यूब। ठीक है ना, 4s प्राइम क्यूब हो जाएगा टू द पावर 3, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2s प्राइम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴, -4, यहाँ पे 4 था, और ये इसको इसको रब कर लेते हैं, फिर इसके बाद प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं। ओके, ओके, -4, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10⁻⁻⁸ एस प्राइम। ठीक है, अभी सबको नेग्लेक्ट कर देना है, सिर्फ एस प्राइम को रखना है, बाकी सब 0 0 0 0 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू छोटा छोटा है ना। अभी यहाँ पे पुट कर देंगे के एस पी का वैल्यू कितना है, के एस पी का वैल्यू है 10⁻⁻16, और कैलकुलेशन करके हम लोग को कितना आया, 10⁻⁸ एस प्राइम। अब तो कैलकुलेशन इजी हो गया, एस प्राइम इज इक्वल्स टू 10⁻⁸ हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर, यू कैन हैव इट। दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहले क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे जो इसका जिसमें इसका एस प्राइम होगा। ठीक है, तो एस प्राइम होने के बाद देखेंगे कॉमन आयन कितना है, उसको इस साइड में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो उसका मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन के बाद जो स्क्वायर और क्यूब का टर्म है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, और बाकी जो टर्म है सिर्फ एस प्राइम का वही रखना है इसमें, और इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज द वे यू कैन डू इट। ओके।